ہمارے پاس اردو نرسری کلاس کی ہے اور اس کا جو سبق نمبر پہلا سبق ہے حمد، اسے آج ہم پڑھیں گے۔ پیار بھرا ہر ایک اشارہ، پیار بھرا ہر ایک اشارہ، پیارا اس کا ہر نظارہ، پیارا اس کا ہر نظارہ، جس نے زمین پر پیار اتارا، جس نے زمین پر پیار اتارا، وہ خود ہوگا کتنا پیارا، وہ خود ہوگا کتنا پیارا، پیار کا اس کے نہیں شمار، پیار کا اس کے نہیں شمار، اللہ ہے بس پیار ہی پیار، اللہ ہے بس پیار ہی پیار۔ یہ ہمارے پاس نرسری کلاس کی اردو کی کتاب ہے اور اس کا سبق نمبر 2 نعت آج ہم پڑھیں گے۔ وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ رہبر و رہنما ہمارے، وہ رہبر و رہنما ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے۔ درود ان پر سلام ان پر، درود ان پر سلام ان پر۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں نعت۔ وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ رہبر و رہنما ہمارے، وہ رہبر و رہنما ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے۔ درود ان پر سلام ان پر، درود ان پر سلام ان پر۔ بس اردو نرسری کلاس کی ہے اور اس کا آج ہم سبق نمبر 3 جو کہ دعا ہے یہ آج ہم پڑھیں گے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی دعا ہے۔ یہ ہمارے پاس اردو نرسری کلاس کی ہے اور اس کا جو سبق نمبر 4 ہے اسے ہم آج پڑھیں گے، جو کہ ہمارے پاس ہے خوش آمدید۔ خوش آمدید خوش آمدید، خوش آمدید خوش آمدید، اسکول کا دن آیا ہے، اسکول کا دن آیا ہے، خوشیاں ساتھ لایا ہے، مل کر ہم سب پڑھیں گے، مل کر ہم سب پڑھیں گے، سب سے آگے بڑھیں گے، خوش آمدید خوش آمدید، اسکول کا دن آیا ہے، امی نے ناشتہ کروایا ہے، امی نے ناشتہ کروایا ہے،
बस्ता मैंने उठाया है, बस्ता मैंने उठाया है। अब्बू ने हारन बजाया है, अब्बू ने हारन बजाया है। दादी ने गले लगाया है, दादी ने गले लगाया है। खुश आमदीद, खुश आमदीद, स्कूल का दिन आया है। चौकीदार को क्या सलाम, चौकीदार को किया सलाम। आया ने लिया मेरा बस्ता थाम, आया ने लिया मेरा बस्ता थाम। सबसे नाम पूछेंगे, सबसे नाम पूछेंगे। अपना भी बताएंगे, अपना भी बताएंगे। दोस्तों के साथ गाएंगे, दोस्तों के साथ गाएंगे। यूं ही सीखते जाएंगे, यूं ही सीखते जाएंगे। खेलेंगे हम दोस्त बनाएंगे, खेलेंगे हम दोस्त बनाएंगे। प्यार मोहब्बत से बढ़ते जाएंगे, प्यार मोहब्बत से बढ़ते जाएंगे। खुश आमदीद, खुश आमदीद, स्कूल का दिन आया है, खुशियाँ साथ लाया है। ये हमारे पास उर्दू नर्सरी क्लास की है और इसका हम सबक मेरा वतन पढ़ेंगे। पाकिस्तान हमारा प्यारा प्यारा, हम सब की आँखों का तारा। पाकिस्तान हमारा प्यारा प्यारा, हम सब की आँखों का तारा। पहाड़ झीलें हमारी शान, पहाड़ झीलें हमारी शान। सब सूबों के अलग पकवान, सब सूबों के अलग पकवान। झरने खेत और खलियान, झरने खेत और खलियान। इनके रखवाले हमारे किसान। उर्दू है प्यारी हमारी ज़बान, उर्दू है प्यारी हमारी ज़बान। कायद और इकबाल हमारी पहचान। फ़ौजी बच्चे बूढ़े जवान, फ़ौजी बच्चे बूढ़े जवान। वतन पे सब की जान कुर्बान। बच्चों, ये हमारे पास मेरा वतन का सबक आपका हो गया है। अब हम अगले जो वीडियो में अपनी हिफाजत करें इसको पढ़ेंगे। और ये हमारे पास उर्दू नर्सरी क्लास की है और इसका आज हम हमारे असूल पढ़ेंगे। कमरा जमात, हम अपनी बारी का इंतज़ार करें। हम आवाज़ धीमी रखें, कमरा जमात में आवाज़ धीमी रखें। हम कमरा जमात को साफ़ रखें, यानी कमरा जमात को साफ़ रखें। हम चीज़ें अपनी जगह पर रखें, चीज़ों को अपनी जगह पर रखें। खेल, हम एक दूसरे का ख्याल रखें, हम एक दूसरे का ख्याल रखें। हम अपनी बारी का इंतज़ार करें। खेल में क्या करना चाहिए? अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। हम किसी को धक्का नहीं देंगे, हम किसी को धक्का नहीं देंगे। हम मुस्कुरा कर मिलेंगे, हम मुस्कुरा कर मिलेंगे। हम मिलजुल कर खेलेंगे, हम मिलजुल कर खेलेंगे। महसूसात, ईद करीब थी। ज़ैनब और उमर बहुत खुश थे। वो अपने अम्मी अब्बू के साथ बाज़ार गए। ज़ैनब ने चूड़ियाँ और उमर ने जूते ख़रीदे। वो केले खा रहे थे कि एक माजूर बच्चा उनके पास आया। उमर उसे देखकर उदास हो गया। उसकी अम्मी ने उस बच्चे को भी ईदी का तोहफ़ा दिया और अम्मी ने उनको बताया कि हमें हमेशा दूसरों का एहसास करना चाहिए। अब आगे महसूसात हैं, तो ये जो हैं ये खुशी के महसूसात हैं। और ये कौन से हैं? ये उदासी के हैं। जब बंदा उदास होता है तो इस तरह होता है, और जब बंदा रोता है तो रोने के ये हैं, और गुस्सा करने के ये हैं। ठीक है, ये गुस्से के महसूसात हैं, और ये रोने के हैं, ये खुश होने के हैं, ये उदास होने के हैं। ठीक हो गया है। हमारे पास उर्दू नर्सरी क्लास के और इसका हम सबक पढ़ेंगे अपनी हिफाजत। बच्चों पते की बात ये जानो, बच्चों पते की बात ये जानो। अजनबी का ना तुम कहना मानो, अजनबी का ना तुम कहना मानो।
आग के पास तुम ना जाओ, आग के पास तुम ना जाओ, दोस्तों को भी ये बताओ, दोस्तों को भी ये बताओ। बिजली के हैं फ़ायदे हज़ारों, बिजली के हैं फ़ायदे हज़ारों, पर एहतियात लाजिम है प्यारों, पर एहतियात लाजिम है प्यारों। घर से अकेले तुम न निकलो, घर से अकेले तुम न निकलो, अपनी हिफाजत करना सीखो, अपनी हिफाजत करना सीखो। एक मरतबा फिर अपनी हिफाजत। बच्चों पते की बात ये जानो, बच्चों पते की बात ये जानो, अजनबी का ना तुम कहना मानो, आग के पास तुम ना जाओ, दोस्तों को भी ये बताओ। बिजली के हैं फ़ायदे हज़ारों, बिजली के हैं फ़ायदे हज़ारों, पर एहतियात लाजिम है प्यारो। घर से अकेले तुम न निकलो, अपनी हिफाजत करना सीखो। यह हमारे पास उर्दू नर्सरी क्लास की है और आज हम फिल करेंगे मेरा तारुफ। आपका क्या नाम है? तो इसका जवाब है मेरा नाम अली है। ठीक है। आप कितने साल के हैं? मैं 10 साल का हूँ। ठीक है। अगला सवाल है, आपका पसंदीदा फल कौन सा है? मेरा पसंदीदा फल सेब है। आगे कहते हैं, आप क्या करना पसंद करते हैं? मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं गांव, अपने गांव का नाम लिख लें, रहता हूँ, या शहर में तो शहर का नाम लिख लें। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? मेरा पसंदीदा रंग सब्ज़ है। ठीक है। तो ये आपका तारुफ है, तो आप इस तरह से अपना तारुफ लिखवा लें। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आप। ये हमारे पास उर्दू नर्सरी क्लास की है और इसका हम आज सबक पढ़ेंगे। अलिफ, एक अनार बड़ा मज़ेदार, खाने वाले इसको हज़ार। आगे ये अनार, ठीक है, और ये अंगूर। अकरम बहुत प्यारा बच्चा है, वो फल लेने अपने अब्बू के साथ बाज़ार गया। इन्होंने अनार और अंगूर ख़रीदे। अकरम को अंगूर खाने की जल्दी थी, उसने अंगूर की तरफ हाथ बढ़ाया तो अब्बू ने उसे रोक दिया और समझाया कि फल धोकर खाते हैं। अब्बू ने घर जाकर अकरम को अंगूर धोकर खिलाए। उसने अब्बू का शुक्रिया अदा किया। तो इस तरह यहाँ पर ये हमारे पास अलीफ़ है। अलिफ़ को किस तरह लिखते हैं? यहाँ से ऊपर से शुरू करते हैं और इस तरह नीचे की तरफ लाते हैं। ठीक है। अलिफ़ से ये भी आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ अलिफ़, और इससे आप इस तरह लिखें अलिफ़, और ये भी आपके पास क्या बन गया? अलिफ़। अलिफ़ से क्या बनता है? अंडा। अलिफ़ से क्या बनता है? अंडा। और अलिफ़ से अमरूद, अलिफ़ से अमरूद। अलिफ़ से अनार, अलिफ़ से अनार। और अलिफ़ से अंगूठी, अलिफ़ से अंगूठी। तो ये आपने आज अलिफ़ सीख लिया है कि अलिफ़ से क्या क्या बनता है। दोबारा से, अलिफ़ से अंडा, अलिफ़ से अंडा, अलिफ़ से अमरूद, अलिफ़ से अनार, और अलिफ़ से अंगूठी। और इसको किस तरह लिखते हैं? ये ऊपर से शुरू करें और इस तरह नीचे की तरफ लाएं। ऊपर से शुरू करें, नीचे की तरफ लाएं, ऊपर से शुरू करें, नीचे की तरफ लाएं। तो ये आपके पास क्या लिख रहे हैं? आप अलिफ़ लिख रहे हैं। ऊपर से शुरू करें और नीचे की तरफ लाएं। तो ये आपके पास क्या हो रहा है? आप अलिफ़ लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास अलिफ़ आ गया है। और आगे ये कहता है कि अलिफ़ पर दायरा लगाएं। आप जान चुके हैं कि ये इस तरह जो ऊपर से नीचे की तरफ हम लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है? अलिफ़ होता है। तो आप ये क्या है? अलिफ़ है। अब इन अल्फाज में जो अलिफ़ है उस पर आप दायरा लगाएं। तो ये वाला जो हर्फ है ये अलिफ़ है, इस पर भी आप दायरा लगाएं।
अब इन 3 हर्फ़ों में कौन सा अलिफ़ है, तो ये वाला हर्फ अलिफ़ है, इस पर आप दायरा लगाएं। और इन तीनों में हमारे पास अलिफ़ कौन सा है, तो ये वाला हर्फ जो है ये अलिफ़ है, इस पर आप दायरा लगाएं। आप यहाँ पर दोबारा प्रैक्टिस करें, ऊपर से नीचे की तरफ अलिफ़, ये ऊपर से नीचे की तरफ अलिफ़, ये ऊपर से नीचे की तरफ अलिफ़, और ये ऊपर से नीचे की तरफ अलिफ़। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस करें और फिर आखिर में आप इधर आएँ तो ये पहला और आखिरी नुक्ते को मिलाना है, ये अलिफ़ बन गया है। पहले और आखिरी नुक्ते को मिलाना है, ये अलिफ़ बन गया है, और इस तरह आपके पास ये भी अलिफ़ बन गया है। तो आपने आज प्यारे बच्चों अलिफ़ लिखना और अलिफ़ से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं वो भी आप सीख चुके हैं। अगला जो सबक होगा ये हमारे पास क्या है, अलिफ़ मद आ, आम वाला आता है, मीठे आम लाता है। आम वाला आता है, मीठे आम लाता है। और इससे आ से बनता है हमारे पास आलू, आ आम, आ आलू, आ आम। अगले इसे पर आएँ तो यहाँ पर हमारे पास सबक है आ आम, आ आँख, आ आड़ू, आ आरी। तो ये 4 लफ्ज़ सीखें, आ आम, आ आँख, आ आड़ू, आ आरी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास इसे लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप ऐसे सीधी लाइन लगाएं, फिर ऊपर से ऐसे आएँ। ठीक है, ये सुर्ख निशान देख रहे हैं, सुर्ख निशान से सीधा और फिर यहाँ से ऐसे। ठीक हो गया। आपने फिर यहाँ से ऐसे आ जाना है, फिर यहाँ से लिखना है इस तरीके से। तो ये सारा आपने इस सफ़े को क्या करना है, फिल करना है बिल्कुल इसी तरीके से। अब आगे आपने बच्चों को ये भी बताना है कि उसके ऊपर पेंसिल फेरें, इसके ऊपर क्या फेरनी है, पेंसिल फेरनी है इस तरीके से। और यहाँ पे आपके पास है आ पर क्या लगाएं, दायरा लगाएं। तो यहाँ पर हमारे पास ये है आ, ये भी हमारे पास आ है, और ये भी हमारे पास आ है। ठीक हो गया। अब आपने दोबारा से बच्चों पर यह मशक करवानी है कि यहाँ पर आपके पास सीधी लाइन खींचनी है और इन नुक्तों के ऊपर लाइन खींचनी है। अब आगे आपके पास क्या होगा कि आपने यहाँ पर इस पर भी प्रैक्टिस करवानी है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से देखें, इधर से सीधी लाइन यहाँ तक इन्होंने ली है, तो हम यहाँ से सीधी लाइन यहाँ तक लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे। अब एक और लिखते हैं कि यहाँ पे ये नीचे वाले 3 लाइनों में सीधी लाइन खींचनी है और यहाँ से यहाँ तक आपने इस पर मद डाल देना है। ठीक हो गया है। तो इस तरीके से आप इसे भी यहाँ तक लिखें। यहाँ पर हमारे पास है इस्लाम के बुनियादी अरकान। ये हमारे पास है औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम को क्या कहते हैं, तौज़ कहते हैं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम को तस्मीह कहते हैं। अब ये हमारे पास है इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं। सबसे पहला हमारे पास कलमा तय्यबा है, फिर हमारे पास नमाज है, फिर रोज़ा है हमारे पास, फिर ज़कात है, फिर हज है। ये भी बच्चों को बताना है। तो आज का सबक यहाँ पे ख़त्म होता है। हमारे पास नर्सरी क्लास की उर्दू है और इसका आज हम हर्फ ब सीखेंगे। ये हमारे पास क्या है, ब बकरी, बकरी में मैं करती है, बकरी मैं करती है, सबको प्यारी लगती है। अब ब से क्या बनता है, ब से बत्तख बनता है, ब से बंदर बनता है, ब से बशीर बनता है। ठीक है, मतलब पहला जो हर्फ है वो ब आता है और इस ब से हमारे पास लफ्ज़ बनते हैं बत्तख, बंदर, बशीर। अब यहाँ पर देखें
किसी गांव में एक लड़का बशीर रहता था। क्या ये इन्होंने सुर्ख किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ब से शुरू होता है। बशीर रहता था, इसको बंदर का तमाशा और बत्तख को पानी में तैरते हुए देखना अच्छा लगता था। आगे है, एक दिन वो बंदर का तमाशा देख रहा था कि किसी बच्चे ने बंदर को पत्थर मारा। बशीर ने इसको समझाया कि जानवरों को तंग नहीं करते। बशीर ने इसको समझाया कि जानवरों को तंग नहीं करते। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ब से क्या बनता है। ये ब लिखने का तरीका ये है कि यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक, यहाँ से शुरू करें यहाँ तक। ये हमारे पास क्या है, ब से बनता है बटन, ब से बनता है बत्तख, ब से बनता है बकरी और ब से बनता है बस्ता। ठीक है, ब से बटन, ब से बत्तख, ब से बकरी और ब से बस्ता। लिखने का तरीका ये है कि यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक और नीचे एक नुक्ता डाल दें। यहाँ से शुरू करें यहाँ तक और नीचे नुक्ता डाल दें तो ये हमारे पास क्या आ गया, ब आ गया है। और यहाँ पर ये कहता है कि ब पर दायरा लगाएं। यहाँ पर हमारे पास ब कौन सा है, तो ये हमारे पास ब है, ये भी हमारे पास ब है और ये भी हमारे पास ब है। ठीक है, और यहाँ पे लिखने का तरीका मैंने आपने बच्चों पे ये मशक करवानी है कि इन पर पेंसिल से क्या करें, मशक करें यहाँ से लेके इस तरीके के साथ। ठीक है, और ये बच्चों ने मशक करवानी है बच्चों पर और फिर आपने इसे ये भी लिखवा देना है और फिर यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक। ठीक है, नीचे आपने इस पर ये भी डाल देना है, नुक्ता भी डाल देना है। इसी तरीके से आपने इसको ये ब वाली प्रैक्टिस करवानी है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने बच्चों को सबक अच्छे तरीके से याद होगा। हमारे पास कायदा है उर्दू का नर्सरी क्लास का और इसमें हम आज सबक पढ़ेंगे प से क्या बनता है, पालक सब्ज़ी निराली है, बड़ी ताकत वाली है। प से पालक, प से पर, प से पनीर, प से परिंदा। यहाँ पर एक मतलब फिर प सीखेंगे। प से पलंग, प से पर, प से पंखा और प से पत्ता। ठीक है, तो दोबारा सुने, प से पलंग, प से पर, प से पंखा, प से पत्ता। अब यहाँ से शुरू करें और इस तरीके से यहाँ पे ख़त्म करें और ये 3 इसके नीचे नुक्ते डाल देने हैं। अब आगे हमारे पास कहता है कि इसकी मशक करें। आपने बच्चों को इसकी मशक करवा देनी है। ठीक हो गया है, इसकी मशक करवानी है बच्चों को। और फिर ये कहता है कि प पर दायरा लगाएं। तो आपने प, यहाँ पर प हमारे पास ये है तो इस पर दायरा लगा देना है, यहाँ पर प ये है तो इस पर दायरा लगा देना है, यहाँ पर प ये है तो इस पर भी दायरा लगा देना है। और आपने इधर भी मशक करवा देनी है बच्चों पर और इधर से आपने शुरू करना है यहाँ पर और यहाँ पर नीचे 3 नुक्ते डाल देने हैं। तो ये आपके पास प है और प आपने क्या की है, भरपूर प्रैक्टिस करवानी है बच्चों पर ताकि उसको प अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक हो गया है, तो ये आपके पास प का से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, पलंग, पर, पंखा और पत्ता। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करवानी है बच्चों को। ये हमारे पास नर्सरी क्लास की उर्दू है और आज हम पढ़ेंगे त से तितली उड़ती फिरती है, रंगों से ये भरी है, सबको भली लगती है, हाथ लगाओ तो डरती है। त से क्या क्या बनता है, तानिया, तितली और तालाब। तानिया, तितली और तालाब। आगे हमारे पास है, तानिया एक तमीज़दार बच्ची थी, उसका पसंदीदा फल तरबूज था। ये ते से बनता है तरबूज था, जिसे वो गर्मियों में अक्सर अपनी दोस्तों के साथ मिलकर खाती थी। उनके घर के पास एक तालाब भी था। वो अपने अम्मी के साथ तालाब की सैर करने गई, जहाँ उसे काफ़ी तितलियाँ उड़ती हुई नज़र आईं।
जब वो तितली पकड़ने के लिए दौड़ी तो उसकी अम्मी ने उसे मना किया। अब आगे हमारे पास त से क्या बनता है, ये त यहाँ से शुरू करें और यहाँ पर ख़त्म करें, ऊपर 2 नुक्ते भी डाल देने हैं। तो ये क्या बन गया, त से ताला, त से तारे, त से तस्बीह, त से तितली। 4 लफ्ज़ बन गए, हर्फ त से 4 लफ्ज़ बन गए, ताला, तारे, तस्बीह और तितली। ठीक हो गया है। और लिखने का तरीका ये है कि यहाँ से शुरू करना है यहाँ तक और 2 नुक्ते डाल देने हैं, यहाँ से शुरू करना है यहाँ तक और 2 नुक्ते डाल देने हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, त। और बच्चों पर ये प्रैक्टिस करवानी है कि यहाँ से ऐसे ऐसे इस पर क्या करें, प्रैक्टिस भी करें। तो ये बच्चों की प्रैक्टिस है, इन सब की प्रैक्टिस करवानी है। त पर दायरा लगाएं, तो जिसके ऊपर 2 नुक्ते हैं वो हमारे पास त है, तो इस पर दायरा लगाएं। 2 नुक्तों वाला त है, इस पर दायरा लगाएं और इस पर दायरा लगाएं। ये हमारे पास क्या बन गया, त बन गया है। अब इस त को इधर प्रैक्टिस करनी है, यहाँ तक ऊपर 2 नुक्ते लगाने हैं, यहाँ से शुरू करें यहाँ तक ऊपर 2 नुक्ते लगाने हैं। इसी तरीके से आपने इन सब की प्रैक्टिस करवानी है। फिर यहाँ पर आ जाना है, फिर यहाँ से शुरू करें और ऐसे ले जाना है यहाँ तक और ऊपर 2 नुक्ते लगाएं। उर्दू का नर्सरी क्लास का। और तो इसके बाद हमारे पास है ट से क्या बनता है, टमाटर मेरे लाल हैं, टमाटर मेरे लाल हैं, हरे इसके बाल हैं, हरे इसके बाल हैं। ट से क्या बनता है, टोकरी, ट से क्या बनता है, टोकरी। ट से बनता है टोपी, ट से बनता है टमाटर, ट से बनता है टमाटर। अब आगे जाएं, ट से बनता है टेलीफोन, ट से बनता है टोपी, ट से बनता है ट्रैक्टर, ट से बनता है टोकरी। दोबारा देखें, ट से टेलीफोन, ट से टोपी, ट से ट्रैक्टर, ट से टोकरी। लिखने का तरीका क्या है, यहाँ से शुरू करें स्टार्ट से यहाँ तक और फिर ऐसे आ जाएं, ऐसे और दोबारा फिर ऐसे। तो ये इसका लिखने का तरीक़ेकार है। आगे जाते हैं, बच्चों पर इसकी प्रैक्टिस करवानी है। यहाँ से शुरू करें ऐसे, ये इसकी प्रैक्टिस करवानी है यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद यहाँ पर है ट पर दायरा लगाएं, तो ये इधर ट है तो इस पर दायरा लगा देना है। यहाँ पर भी ट है, इधर भी दायरा लगा देना है। यहाँ पर भी ट है, इधर भी लगा देना है। यहाँ पर ट लिखने की प्रैक्टिस करवा देनी है बच्चों पर। तो इस तरह ट लिखा जाता है। दोबारा जो नीचे एक नुक्ता है, बकाया कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी ट लिख देना है और यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करवा देनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी प्रैक्टिस है। यहाँ पर हमारे पास है ट्रैफिक के इशारे। अली अपने अब्बू के हमरा सड़क पार करने लगा तो अब्बू ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अली बेटा सड़क को ध्यान से पार करते हैं। पैदल सड़क पार करने वालों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ये वाली क्या है, इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। अगर कहीं ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना हो तो हमें सुर्ख बत्ती जलने का इंतज़ार करना चाहिए। वो क्यों? अली बोला। अब्बू ने बताया कि जब सुर्ख बत्ती जलती है तो तमाम गाड़ियां रुक जाती हैं, फिर हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ज़रिए सड़क पार कर सकते हैं। अली ने पूछा, फिर ये पीली और सब्ज़ बत्ती क्यों है? अब्बू ने बताया कि पीली बत्ती का मतलब है तैयार हो जाएं और सब्ज़ बत्ती का मतलब है अब गाड़ियाँ चल सकती हैं, लिहाजा हमें दाएँ बाएँ देखकर ध्यान से सड़क पार करनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ये हमारे पास नर्सरी क्लास की उर्दू है और इस सारे कायदे को आज हम एक ही लेक्चर में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ये हमारे पास क्या है, अ से अंडा, अ से अमरूद, अ से अनार, अ से अंगूठी। क्या बन गया? अ से अंडा, अ से अमरूद, अ से अनार और अ से अंगूठी।
یہ ہمارے پاس کیا ہے آ سے آم، آ سے آنکھ، آ سے آڑو اور آ سے آری، کیا بنتا ہے؟ آ سے آم، آ سے آنکھ، آ سے آڑو اور آ سے آری۔ لکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس طرح سیدھی لائن کھینچنی ہے اور اس کے اوپر پھر ایسے کھینچ لینی ہے، تو یہ اس کا لکھنے کا طریقہ ہے۔ یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ ب سے بنتا ہے بٹن، ب سے بنتا ہے بطخ، ب سے بنتا ہے بکری اور ب سے بنتا ہے بستہ۔ کیا کیا؟ ب سے بٹن، ب سے بطخ، ب سے بکری اور ب سے بستہ۔ لکھنے کا طریقہ ب کا یہ ہے کہ یہاں سے شروع کریں اور اس طرح یہاں تک لے کے اور نیچے ایک نقطہ ڈال دیں، یہ آپ کے پاس کیا بن گیا ہے؟ ب بن گیا ہے۔ یہ آپ کے پاس ہے پ سے پلنگ، پ سے پر، پ سے پنکھا اور پ سے پتا۔ کیا بنتا ہے؟ پ سے پلنگ، پ سے پر، پ سے پنکھا اور پ سے پتا۔ اور یہاں پر آپ کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک لائن اور اس کے نیچے 3 نقطے ڈال دینے ہیں، تو یہ آپ کے پاس پ بن گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے ت سے تالا، ت سے تارے، ت سے تسبیح اور ت سے تتلی۔ ت سے تالا، ت سے تارے، ت سے تسبیح اور ت سے تتلی۔ یہ ہمارے پاس ہے ٹ سے ٹیلی فون، ٹ سے ٹوپی، ٹ سے ٹریکٹر، ٹ سے ٹوکری۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹ سے ٹیلی فون، ٹ سے ٹوپی، ٹ سے ٹریکٹر، ٹ سے ٹوکری۔ تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ہے؟ ٹ سے ٹوکری۔ تو یہ ہمارے پاس ٹ کا لفظ آ گیا ہے۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے شروع کریں یہاں تک اور اوپر آپ نے یہ نشان ڈال دینا ہے، تو یہ ٹ بن گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے س سے سمر، س سے سمر۔ اور لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے لکھنا ہے، ایسی لین کھینچنی ہے یہاں تک اور اس کے اوپر 3 نقطے ڈالنے ہیں، تو یہ آپ کے پاس س بن گیا ہے، س سے سمر۔ دہرائی میں ہمارے پاس جو حرف ہیں وہ ہے س، الف، پ، ب، ٹ اور ت۔ تو س سے کیا بنتا ہے؟ سمر، ا سے انگور، پ سے پتا، ب سے بندر، ٹ سے ٹیلی فون اور ت سے تالا۔ یہ ہمارے پاس ہے جیم، جیم سے جہاز، جیم سے جال اور جیم سے جراثیم اور جیم سے جوتا۔ جیم سے کیا کیا بنتا ہے؟ جہاز، جیم سے جال، جیم سے جراثیم اور جیم سے جوتا۔ یہ ہمارے پاس ہے چین، چ سے چمچ، چ سے چابی، چ سے چینک اور چ سے چاند۔ چمچ، چ سے چابی، چ سے چینک، چ سے چاند۔ یہ ہمارے پاس ہے ح سے حمام، ح سے حجام، ح سے حلوائی اور ح سے حوض۔ ح سے حمام، ح سے حجام، ح سے حلوائی اور ح سے حوض۔ یہ ہمارے پاس ہے خ سے خط، خ سے خربوزہ، خ سے خرگوش، خ سے خیمہ۔ خ سے خط، خ سے خربوزہ، خ سے خرگوش اور خ سے خیمہ۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے دہرائی، چیم سے چڑیا، جیم سے جیپ، خ سے خرگوش اور ح سے حلوائی۔ یہ ہمارے پاس آ گیا د سے درخت، د سے دروازہ، د سے دوات اور د سے دانت۔ د سے درخت، د سے دروازہ، د سے دوات اور د سے دانت۔ یہ ہمارے پاس ہے ڈ سے ڈول، ڈ سے ڈالی، ڈ سے ڈاکیا، ڈ سے ڈبہ۔ ڈ سے ڈول، ڈ سے ڈالی، ڈ سے ڈاکیا اور ڈ سے ڈبہ۔ یہ ہمارے پاس ہے ز سے ذخیرہ، ز سے ذخیرہ۔ یہ ہمارے پاس ہے ر سے ریچھ، ر سے رکشہ، ر سے روٹی، ر سے رومال۔ ٹھیک ہو گیا؟ ر سے ریچھ، ر سے رکشہ، ر سے روٹی اور ر سے رومال۔ یہ ہمارے پاس ہے ڑ سے پہاڑ، ڑ سے آڑو، ڑ سے پہاڑ، ڑ سے آڑو۔ یہ ہمارے پاس ہے ز سے زمین، ز سے زنجیر،
ز سے زیور، ز سے زیبرا، ز سے زمین، ز سے زنجیر، ز سے زیور، ز سے زیبرا. یہ ہمارے پاس ہے ر سے ژالہ سے ژالہ باری. یہ ہمارے پاس ہے دہرائی ر سے ژالہ باری، تو ہمارے پاس یہ ہے ژالہ باری. ڑ سے پہاڑ، تو یہ ہمارے پاس ہیں پہاڑ. ز سے ذخیرہ، تو یہ ہمارے پاس ہے ذخیرہ. د سے درخت، تو یہ ہمارے پاس ہے درخت. ز سے زیبرا، تو یہ ہمارے پاس ہے زیبرا. ر سے ریچھ، تو یہ ہمارے پاس ہے ریچھ. یہ ہمارے پاس ہے سین سے ستارے، سین سے سیب، سین سے سپاہی، سین سے سانپ. کیا بن گیا؟ سین سے ستارے، سین سے سیب، سین سے سپاہی اور سین سے سانپ. یہ ہمارے پاس ہے ش سے شاہین، ش سے شمع، ش سے شلجم اور ش سے شمشیر. ش سے شاہین، ش سے شمع، ش سے شلجم اور ش سے شمشیر. یہ ہمارے پاس ہے سواد. س سے صوفہ، س سے صندوق، س سے صابن، س سے صراحی. س سے صوفہ، س سے صندوق، س سے صابن، س سے صراحی. اسے ہم پڑھتے ہیں زواد. ز سے ضعیف، ز سے ضعیف، ز سے ضائع، ز سے ضعیف، ضاد سے ضائع. یہ ہمارے پاس ہے تہ سے طباق، تہ سے طبلہ، تہ سے طالب علم، تہ سے طاق. کیا؟ تہ سے طباق، تہ سے طبلہ، تہ سے طالب علم، تہ سے طاق. یہ ہمارے پاس ہے ز سے ظروف، ز سے ظروف. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ دہرائی. سین سے سیب، شین سے شیر اور صاد سے صابن. طاء سے طاق، ضاد سے ضعیف اور ظ سے ظروف. ٹھیک ہو گیا؟ عین سے اینک، عین سے عطر، عین سے عوام، عین سے عالم. عین سے عینک، عین سے عطر، عین سے عوام، عین سے عالم. اسے ہم پڑھتے ہیں غین. لیکن یہاں پہ غ سے غالط، غ سے غلط، غ سے غوطہ، غ سے غار، غ سے غلیل. غ سے غلط، غ سے غوطہ، غ سے غار، غ سے غلیل. ہمارے پاس ہے ف سے فاختہ، ف سے فالودہ، ف سے فوجی، ف سے فوارہ. ف سے فاختہ، ف سے فالودہ، ف سے فوجی، ف سے فوارہ. یہ ہمارے پاس ہے قاف. ق سے قینچی، ق سے قلم، ق سے قوس قزح، ق سے قصاب. ق سے قینچی، ق سے قلم، ق سے قوس قزح، ق سے قصاب. اسے ہم پڑھتے ہیں کیاف. ک سے کشتی، ک سے کبوتر، ک سے کچرا، ک سے کنگھی. ک سے کشتی، ک سے کبوتر، ک سے کچرا، ک سے کنگھی. یہ ہمارے پاس ہے گ سے گاجر، گ سے گلاب، گ سے گیند، گ سے گملہ. گ سے گاجر، گ سے گلاب، گ سے گیند، گ سے گملہ. یہ ہمارے پاس ہے لام. ل سے لوٹا، ل سے لومڑی، ل سے لباس، ل سے لڈو. ل سے لوٹا، ل سے لومڑی، ل سے لباس، ل سے لڈو. یہ ہمارے پاس ہے دہرائی. عین سے عینک، غ سے غار، ف سے فوارہ، قاف سے قلم اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے کاف سے کچرا، گاف سے گاجر اور لام سے لومڑی. ٹھیک ہو گیا ہے؟ یہ ہمارے پاس آتا ہے م سے موم بتی، م سے میز، م سے مچھلی، م سے مسجد. م سے موم بتی، م سے میز، م سے مچھلی، م سے مسجد. یہ ہمارے پاس ہے ن سے ناریل، ن سے نلکا، ن سے ناشپاتی، ن سے نان. ن سے ناریل، ن سے نلکا، ن سے ناشپاتی، ن سے نان. یہ ہمارے پاس ہے واو. واو سے وردی، واو سے وضو، واو سے ورزش، واو سے وارک.
واو سے وردی، واو سے وضو، واو سے ورزش، واو سے ورک. یہ ہمارے پاس ہے ہا. ہا سے ہاتھی، ہا سے ہرن، ہا سے ہاتھ، ہا سے ہاتھی، ہا سے ہرن، ہا سے ہاتھ. اسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ، یعنی اس سے بنتا ہے چائے. کیا؟ چائے. اور یہ ہمارے پاس ہے یا سے یکا، یا سے یکا. اور یہ ہمارے پاس ہے بڑی ہے، یہ سے ستارے، یہ سے ستارے. یہ ہمارے پاس ہے ان سے ناشپاتی، واو سے ورزش، ہا سے ہاتھی. اور یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا یہ، اس سے چائے، یا سے ستارے، اور یا سے یکا. ٹھیک ہو گیا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس جو نرسری کلاس کی اردو تھی یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. تھینکس فار واچنگ.